Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with a new video. In this video we are going to discuss practical number 21 for class 12 computer science with Python code 083, and this video is for the practical file. In this we are having a program to create a database and table and insert records into it. And this program we are going to do in the Python using the MySQL. That is, we'll write the code in Python and that changes will be reflected in the MySQL database software. So let us understand this, how to perform this practical. We'll move on to, for this purpose, ideally Python, and we'll try to write the program. So what is the heading of our program? Write a program to create a database and table and insert records into it. Now for this purpose, first of all, we need to import a module which is known as the mysql.connector, and from here we are going to specify the name of the module. We'll give the import command mysql.connector, and we'll take this alias name as m. Then we have to create the connection object as con, any name you can give here, m.connect. In this we need to pass the 4 parameters, that is user is equal to root, host is equal to localhost, password will be the password of your MySQL, that is we are having 1 2 3 4 5, and then we have the name of the database. Suppose we have the database school in our MySQL, so we are going to take that database. Okay. Now we are going to create the cursor instance, that is we'll say cur is equal to con.cursor. Now first thing is we need to create the table. So we need to write the query using the execute function, cursor.execute, cur.execute basically, and here we need to write down the query. So we need to create a database and then a table and then insert record into it. So in order to create a database, first we need to give the create command. तो यहाँ पे database जो आपके parameter होता है वो optional होता है. अगर already created है database तो आप उसका name यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नया create करना चाहते हैं, in that case you have to just specify the 3 parameters here. ठीक है. Now we need to first of all give a command to create a database. Suppose यहाँ पे हम school 1 के नाम से एक database बनाते हैं. पहले हम एक बार MySQL में जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से databases अवेलेबल हैं. तो show databases में गए. This is the list of the databases. School नाम से है तो हम school 1 नाम से एक database बना लेते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा create database school 1. ठीक है. सिंपली ये कमांड होती है हमारी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, एंड देन con.close. ठीक है. दिस वी डू. नाउ इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. तो हमने यहाँ पे ये लिखा. नाउ वी आर गोइंग टू रन प्रोग्राम एंड चेक इट्स आउटपुट. डेटाबेस क्रिएटेड, हम इसके पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे एंड देन वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड चेक इट्स आउटपुट. So it is saying database created. Now यहाँ से आप जाएंगे MySQL में, again give the command show databases. तो यहाँ से देखो आपके पास school 1 नाम से जो database वो आ चुका है. ठीक है. Now we need to use this database. तो इसके लिए हम अपनी practical file पे जाते हैं, जहाँ से हमें इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है जो हमारा आउटपुट आया है, प्लस हमने जो इसकी कोडिंग लिखी है. ठीक है. तो कोडिंग का हम एक साथ लेंगे, आउटपुट जो भी हमारा आएगा. यहाँ पे हमने पहले डेटाबेस को क्रिएट किया. सो फॉर दैट पर्पस सी दिस इज आवर कोडिंग. डेटाबेस क्रिएटेड. सो हम इतने का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. विंडोज शिफ्ट एंड एस किया और यहाँ से हमने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया. तो अपनी फाइल विल गो टू प्रैक्टिकल नंबर 21 इन दिस केस and give the heading as practical 21. जो हेडिंग आपने यहाँ पे दिया आप डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अभी नीचे हम इसका आउटपुट के स्क्रीनशॉट को ले रहे हैं. इतना पार्ट हमने यहाँ से अटैच कर दिया. ठीक है. नाउ विल गो बैक टू द कोडिंग एंड यहाँ से हमने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है. ठीक है. सो वी आर गोइंग बैक हियर एंड विल टेक द कर्सर हियर एंड पेस्ट इट. ठीक है.
अब आपने इसमें क्या करना है, नाउ वी हैव क्रिएटेड द डेटाबेस, अब हमने इसके अंदर टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। वापस से हम जाएंगे यहाँ पे एंड सिंस द डेटाबेस इज क्रिएटेड विद द नेम school1, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डेटाबेस इज इक्वल टू school1, ठीक है। दिस विल गिव इन द सिंगल और द डबल कोट्स एज पर योर विश। अब school1 नाम का डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, नाउ वी नीड टू क्रिएट द टेबल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसमें हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम सपोज रोल नंबर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का विच इज़ अ प्राइमरी की। देन हम यहाँ से ले लेते हैं नेम विच इज़ ऑफ कैर टाइप, सपोज साइज वी हैव गिवन एज 10। देन यहाँ से हमने क्लास ले ली विच इज़ अगेन ऑफ इंटीजर टाइप, एंड देन यहाँ से हमने सेक्शन ले लिया, सपोज दैट इज़ ऑफ varchar टाइप, एंड साइज वी हैव टेकन एज 5, ठीक है। दिस वे वी हैव क्रिएटेड द क्वेरी, एंड यहाँ से जो ये ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया था इसे हम यहाँ पे क्लोज करेंगे लाइक दिस, ठीक है। एंड ये हमारी यहाँ से क्वेरी खत्म हुई, एंड दिस इज द ब्रैकेट ऑफ द एग्जीक्यूट फंक्शन, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द एग्जीक्यूट फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या लिखवाएंगे, टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, और यहाँ से हमने क्या कर देना है, क्लोज, ठीक है। ये चीज़ आप नीचे ले सकते हैं लाइक दिस, okay. So now we are going to run this and check whether the table has been created or not. It says table created. अब MySQL में जाके चेक करिए, इसके लिए you have to say use school1. What is the name of the database जिसमें हमने टेबल बनाई, school1। अब इसमें हमने कहा show tables, तो यहाँ से देखो आपके पास स्टूडेंट नाम की टेबल आ गई, बन गया टेबल। If you need to check the structure of the table, you can say DESC student. So you can see here roll number, name, class, section, data type, null key, default, ये सब इसमें आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है जो भी आपकी कोडिंग है जिसमें आपने टेबल क्रिएट की है, ठीक है। तो यहाँ से विंडोज शिफ्ट एस करेंगे और इतने पार्ट का हम यहाँ से ले लेंगे स्क्रीनशॉट। वापस से हम अपनी की फाइल पे जाएंगे, इसी के नीचे इसे अटैच कर देंगे कि पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, हमने इसका टेबल क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लेके एंड देन वी हैव टू एडजस्ट इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ओके। नाउ अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमारा डेटाबेस है इसका आउटपुट आ चुका है, नीचे हमने टेबल वाले का आउटपुट लेना है। तो यहाँ से आप इसकी आउटपुट वाले पार्ट पे जाएंगे, यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, दैट इज टेबल क्रिएटेड। इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट और इसके नीचे आप इसे अटैच कर देंगे, दैट इज टेबल क्रिएटेड, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है, तो इसके साथ साथ आपका जो MySQL का आता जा रहा है आउटपुट वो भी आप लेते जाएंगे। जैसे कि विंडोज शिफ्ट और एस किया तो यहाँ पे आप इस तरह का ले सकते हैं, यूज school1, और इसमें जो टेबल है दैट इज स्टूडेंट। इतने पार्ट का हमने स्क्रीनशॉट लिया, साथ के साथ हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया इन द वर्ड फाइल, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है, तो हम अपने कोडिंग पार्ट पे वापस से जाते हैं। अब नाउ वी नीड टू इंसर्ट द डेटा, तो यहाँ से हम इंसर्ट कमांड को करेंगे, ऊपर की बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ माय टेबल स्टूडेंट, वैल्यूज़ सबसे पहले हमारे पास है दैट इज़ रोल नंबर है तो 1 डाल दिया, और उसके बाद हमारे पास इसमें है नेम, रोहन डाल दिया। देन हमारे पास क्लास है तो हमने क्लास 12 डाल दी, और सेक्शन हमने डाल दिया सपोज R1, ठीक है। इस तरह से हमने लिया। अब सारे रिकॉर्ड्स हम एक साथ इंसर्ट कर लेते हैं, कॉमा, यहाँ से हमने ले लिया रोल नंबर 2, नेम यहाँ से हमने ले लिया ऋषि, और उसके बाद हमारा है क्लास हो गई 11 एंड सेक्शन हो गया R2, ठीक है। ये सेकंड रिकॉर्ड हो गया। 3 रिकॉर्ड्स हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। रोल नंबर ले लिया 3, नेम ले लिया हमने प्रिया, एंड देन क्लास हो गई 12, और हमारे पास सेक्शन हो गया R3, ठीक है। इसको हम कोट्स में डालेंगे। इतने पार्ट को हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं लाइक दिस, एंड दिस विल क्लोज, एंड ये ब्रैकेट जो यहाँ से हमने वैल्यूज़ के बाद स्टार्ट की थी इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, अपनी क्वेरी को एंड करेंगे, और एग्जीक्यूट फंक्शन के ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, उसकी जगह पे भी लिख सकते हो, या फिर जो पहले कमांड लिखी है उसे आप कमेंट बना के नेक्स्ट लाइन में भी अपनी कमांड दे सकते हैं, ठीक है।
तो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड आ जाएगा यहाँ पे क्रिएटेड के प्लेस पे। इस तरह से यहाँ से हमने इसको रन किया तो आपके पास क्या आ गया, एरर इज कमिंग, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू। ओके, हो सकता है हमने यहाँ पे 4 चीजें नहीं दी हैं। लेट अस रन दिस कमांड एंड चेक इट, इट सेज रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। ठीक है, तो टेबल कौन सी है हमारी, स्टूडेंट नाम की टेबल है, डेटाबेस स्कूल 1 है। अब MySQL में जाके आप चेक करो, कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन वी आर गोइंग टू रन इट। इट सेज एम्प्टी सेट। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें इंसर्ट के बाद जो कमिट फंक्शन था वो नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमें लिखना है कॉन डॉट कमिट। दिस फंक्शन इज नेसेसरी जब भी आप इसमें इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन करें, तो तभी आपको चेंजेस आपको दिखाई देंगे। रिकॉर्ड्स इंसर्टेड आ गया। अब आप MySQL में वापस से जाएंगे, देन यू विल स्पेसिफाई द सेम कमांड दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो जो 3 रिकॉर्ड आपने डाले थे वो आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पे आपकी कोडिंग है, दैट इज विंडोज शिफ्टर एस किया, और यहाँ से आपने अगेन इतने पार्ट का क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, बार सेम चीज का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप बीच के पार्ट में उस लाइन को, जैसे कि क्रिएट टेबल की कमांड थी, उसको कमेंट बना के इंसर्ट की कमांड को नेक्स्ट लाइन में लेके उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर विश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया उसकी हमने यहाँ पे कोडिंग का स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो आउटपुट लिया उसमें डेटाबेस को क्रिएट किया, टेबल क्रिएटेड हमने शो कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को शो करना है, तो यहाँ से आप MySQL में जाओगे और यहाँ से आपने अपने जो सेलेक्ट स्टेटमेंट आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको शो कर दोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ से हमने इस तरह से इसको डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, सो दिस इज द टेबल। यहाँ पे हमारा स्कूल 1 नाम का डेटाबेस आ चुका है। फिर इसके बाद हमारी जो टेबल है वो उसके अंदर शो हो चुकी है, दैट इज स्टूडेंट टेबल बन चुकी है, और नीचे हमारे 3 रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और थी, यहाँ पर रिकॉर्ड्स इंसर्टेड का आया था, तो इतने पार्ट का आपने अगेन स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको आप यहाँ से कॉपी करके और वर्ड फाइल में जाके और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ये टेबल क्रिएटेड इसके नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे जाएंगे और ये इस तरह से आपने इसको अटैच करना है, और अटैच करने के बाद जो आपका नीचे वाला पार्ट है, दिस मच पार्ट, दैट इज जो आपका स्क्रीनशॉट है ऑफ द रिकॉर्ड्स इंसर्शन, वो आप इसके नीचे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार इसको हम ध्यान से देख लेते हैं, हमने इसमें क्या क्या किया। हमने इसमें 3 चीज़ें की हैं। सबसे पहले हमने इसमें डेटाबेस को क्रिएट किया है, फिर हमने टेबल को क्रिएट किया है, और फिर हमने उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया है। और तीनों के जो हमारे पाइथन में आउटपुट आए और उसके अकॉर्डिंग जो MySQL में आउटपुट गए, वो हमने इसके अंदर क्या किए, अटैच कर दिए। इसको आप थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल, इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक बार इसको ऐसे देख लिया। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे इसकी हेडिंग है, डेटाबेस क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, देन हमने इनके इस तरह से स्क्रीनशॉट लिए, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रैक्टिकल डन। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी हैव डन द प्रैक्टिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इसी में से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने का ट्राई करेंगे, और अगर नहीं मिलता तो वी हैव टू डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज। वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कैसे करना है। अगर आपको ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आ गया हो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, so that they can also be helped in making the practical file. You can like the video, share it, and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.